آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق ایک دن یسوع نے کفرنہوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں ایسی باتیں کہیں کہ اس کے شاگردوں میں سے بہت سے سن کر کہنے لگے کہ یہ کلام سخت ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ مگر یسوع نے جی میں یہ جانتے ہوئے کہ میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا یہ بات تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے؟ اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو پھر کیا کہو گے؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسد سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے کون ہیں اور کون اسے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اسی لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے دیا نہ گیا ہو۔ اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 سے کہا کہ کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم تو ایمان لائے ہیں اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز، آپ سب کو سال کے دوران 21واں اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ کچھ دن پہلے 14 اگست کو ہم نے اپنے چرچ کی 30ویں سالگرہ منائی۔ کتنی سالگرہ منائی؟ 30ویں سالگرہ منائی۔ 30 سال جب سے اس چرچ کی تقدیس ہوئی ہے، لیکن یوحنا آباد کی کلیسیا اس سے پہلے سے یہاں پر آباد ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے، کیونکہ 2013 میں ہم نے یوحنا آباد کی آبادکار کی 50 سالہ کیا منائی تھی؟ 50 سالہ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ آواز ہی نہیں آئی۔ کب منائی تھی ہم نے جبلی 50 سالہ؟ 2013 میں 50 سالہ جبلی ہم نے منائی تھی۔ تو ضرور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ہمارے بزرگ ہوں گے جو بہت سالوں سے اس چرچ میں آتے ہیں، بہت سالوں سے اس چرچ میں آتے ہیں۔ کون زیادہ سے زیادہ 30 سال سے زیادہ کس کو عرصہ ہو گیا یوحنا آباد میں؟ بہت سارے لوگوں کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور یقیناً کم از کم 30 سال آپ اس گرجا گھر میں پاکماز کے لیے دعا کے لیے آتے رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ضرور ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے بزرگ ہمارے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو یہاں پہ آتے ہوئے۔ کیوں میں 30 کا ایسے ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ 30 سال ہم نے سالگرہ منائی۔ ایک شخص تھا، آدمی بہت ایماندار، کیتھولک، 30 سال ہو گئے اس کو مسلسل چرچ آتے ہوئے۔ ایک دن وہ فیصلہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے، ایک دن فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب چرچ نہیں جایا کروں گا۔ وہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے، اور دوست، ابھی آپ کو پتہ ہے سارا سوشل میڈیا کا دور ہے، دوست اس کا لکھاری ہوتا ہے، نیوز پیپر میں لکھنے والا ہوتا ہے۔ دوست سے بات کرتا ہے، یار 30 سال مجھ کو ہو گئے ہیں چرچ جاتے ہوئے، اور ان 30 سالوں میں پتہ نہیں کتنے ہزار میں نے لیکچر جو ہیں وہ سنے ہیں۔ چلو اگر سنڈیز کی بھی بات کریں تو 16-17 ہزار کے قریب لیکچر 30 سالوں میں بن جاتے ہیں اتواروں کے، اور باقی کہتا لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔
इन 30 सालों में मैंने क्या सुना, फादर साहबान कितने आए कितने गए, पता नहीं कितनों ने क्या क्या लेक्चर दिए, तो 30 सालों में मुझे कुछ भी याद नहीं। कहता कोई फ़ायदा तो है नहीं चर्च जाने का, कोई फ़ायदा तो है नहीं चर्च जाने का, इसलिए आज से फैसला, मैं चर्च नहीं जाया करूँगा। फैसला हो गया। उसके दोस्त ने सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया कि भाई ये जो बंदा है 30 सालों के बाद उसने फैसला किया है कि मैं चर्च नहीं जाया करूँगा। अब लोग, आपको पता है सोशल मीडिया फिर कमेंट करते हैं, ओ वेरी गुड, जिन्होंने तो खुश हो गए, शुक्र है तू चर्च की जान छड़ी, ये है वो है। कुछ दिनों बाद एक शख्स उसको कमेंट करता है, कहता है कि मेरी शादी को तकरीबन 40 साल हो गया, मेरी शादी को तकरीबन 40 साल हो गया, और इन 40 सालों में है कोई इधर जिसकी शादी को 40 साल से ऊपर हो गए, 30 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर है कोई इधर? 1 2 3, ओ वाह, सबके लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। बड़ी बरकत है खुदा की 40 साल शादी को। वो कहते 40 साल शादी को हो गए हैं, और इन 40 सालों में मेरी बेगम ने हर रोज मुझे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना और बाकी जितनी भी डिशेस बना के खिलाई हैं। अब जिनको 40 साल की तो याद है कि 40 साल जो तुहाडी बेगम ने की तो बना के खवाया, मैन्यू याद है सारे कि पहले दिन की बनाया, दूसरे दिन की बनाया, कि बिरयानी की, समोसे की, नान पकौड़े नहीं, नान पकौड़े घर थोड़ी बनते बाहर की, बिरयानियाँ याद है किसी को? 30-40 सालों में क्या क्या आपकी बेगम आपको बना के खिलाती रही है? याद है? या तू जरा बैठ जा, याद हल्लो, याद है? याद है आपको? किसी को याद है 40 सालों में क्या खिलाती रही है आपको? चलो कल शाम की दिहाड़ी याद होगी, हाँ एक दिन दी। चलो अभी मैं पूछता नहीं कि पिछले इतवार को क्या तलावत हमने सुनी थी या पढ़ी थी इंजील मुकद्दस। अच्छा, वो कहते 40 सालों में इतना कुछ मेरी बेगम ने मुझे बना के खिलाया है, तो मुझे मेनू तो याद नहीं है, लेकिन वो जितने खाने खिलाती रही है उसका कुछ असर हुआ, उसका कुछ फायदा हुआ, उसे बंदे को फायदा हुआ। मैनू भावे नहीं याद की खाने खिलाए नहीं याद, लेकिन असर कुछ होया कि नहीं होया? वो भाई जे 40 साल कढ़ ले ने, जे 50 साल जिंदगी तो खाने की वजह तो ही है जी। अज असी जिंदा वा ते की ख्याल है ना खाना खा रहा हो 3-4 दिन भूखे, आप ही पता लग जाएगा। तो क्या है वो फायदा होगा खानों का? उसी खुदा मेरे अजीज, बंदे ने फैसला कि मैं नहीं जाऊंगा। भाई आपको तलावतें याद हो ना हो, आपको लेक्चर याद ना हो, लेकिन जो हर रोज की आपकी रूहानी खुराक थी वो आपको मिलती रही है चर्च से, वो मिलती रही, इसलिए तो आप इतनी दूर तक आ गए हैं। इसलिए आपका जो फैसला था वो एक गलत फैसला था। आपका जो फैसला था वो एक गलत फैसला था। इस कहानी के सुनाने का मकसद क्या है? क्योंकि आज सारा कुछ फैसलों पे है। आज की पहली तिलावत पे भी फैसला ही करना है। योशुआ कहता है कि भी फैसला कर लो। इसलिए मैंने कहा कि फैसले हमारी जिंदगी में हर वक्त मौजूद हैं। आप चाहें या ना चाहें, हमारी जिंदगी फैसलों से भरी पड़ी है। छोटे छोटे हो, बड़े बड़े हो, फैसलों से भरी पड़ी है हमारी जिंदगी। हम इनके बगैर रह ही नहीं सकते। आप हर लम्हे फैसला करते हैं। आप लोग इधर बैठे हैं, आप सब ने फैसला किया कि आज हमने क्या करना है, चर्च जाना है। ये फैसला है आपका। आप फैसला करके आए हैं। आपने फैसला किया, डिसाइड किया है सुबह में कि भी मैंने उठना है कि नहीं उठना। भाई उठा कि ना उठा, ये सुता रहा। तो फैसला आप लोगों ने क्या किया कि मुझे उठना चाहिए क्योंकि आज इतवार है। कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि चाहे हम बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अफसर हैं, काम करने वाला कोई भी हम हैं, हम सब की जिंदगी जो है वो फैसलों के बगैर नामुमकिन है। हम फैसला करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि फैसले हमारे गलत हो सकते हैं, फैसले हमारे सही हो सकते हैं।
अब गलत और सही का फैसला हमने क्या करना है, यहां पर कुछ हमने क्राइटेरियाज जो हैं वो देखने हैं, कुछ हमने चीजें देखनी है कि हमारा फैसला जो है वो सही फैसला हो। देखिए, जब हम फैसले करते हैं तो हमें किसी ना किसी चीज का इल्म होना बहुत जरूरी है। नॉलेज वो हमारे लिए जरूरी है, हमें इल्म होना चाहिए। हमें इल्म होना चाहिए कि ये जो मैं करने लगा हूं ये अच्छा है या बुरा है। अब आप लोगों ने आज चर्च आने का फैसला किया है, ये फैसला अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। क्यों? आपको पता है, आपको इल्म है कि मैं चर्च जाऊंगा ताकि खुदा का क्या कर सकूं, शुक्रिया अदा कर सकूं अपनी जिंदगी के लिए, तमाम नेमतों के लिए। अब फैसलों में हमें जरूर इल्म और दूसरों की मदद की भी जरूरत होती है। अब फैसले में इल्म, दूसरों की मदद और बहुत सारी चीजों के साथ साथ बहुत ज्यादा खुदा के फजल की जरूरत होती है ताकि मैं एक अच्छा फैसला कर सकूं। आज फैसला करने के लिए योशुआ जो है वो बनी इस्राएल कौम के बुजुर्गों को बुलाता है, शिकम के मुकाम पर बुलाता है। अब हमें पता है, हम पढ़ते हैं कि हजरत मूसा जो हैं वो वादा की सरजमीन में दाखिल हुए बगैर जो है वो पा जाते हैं और खुदा कहता है कि तू अपनी जगह पे एक जो है वो रहनुमा मुकर्रर कर। वो यशुआ को चुनते हैं, यशुआ को मुकर्रर करते हैं। अब यशुआ की रहनुमाई में बनी इस्राएल जो है वो जो वादा की सरजमीन है उसमें फतुहात करती हैं। उस पर जो है वो फिर फतुहात करने के बाद सब में जमीन बांट दी जाती है, तमाम 12 कबीलों में, और सब सेटल्ड हो जाते हैं। अब जब सेटल्ड हो गए, यशुआ जो है बुलाता है सब कौम के बुजुर्गों को और कहता है कभी देखो, आज है फैसले की घड़ी, तुमने फैसला करना है कि तुम किसके साथ हो। अब देखें, समझ नहीं आती कि जब बनी इस्राएल कौम ने ऑलरेडी कोहे सीना पर खुदा के साथ वादा और अहद कर लिया है, जब वो सहरा में थे, बियाबान में थे, उन्होंने वादा कर लिया खुदा के साथ। क्या वादा था? खुदा ने कहा कि तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा क्या होऊंगा, ऊंची आवाज, मैं तुम्हारा क्या होऊंगा, खुदा होऊंगा। ऊंची आवाज, मैं तुम्हारा क्या होऊंगा, खुदा होऊंगा। जब कोई सीना पर वादा ऑलरेडी कर लिया है तो आज दोबारा से क्यों जरूरत पड़ी कि वो फिर से बुलाए और कहे कि अपने अहद की तजदीद करो, उसे पक्का करो कि तुम किसकी इबादत करोगे। तुम्हारे बाबा अजदाद जो हैं वो यहां पर बुतों की पूजा करते रहे हैं। हजरत इब्राहिम के भी जो वालदेन थे, उर्स के भी जो आबा अजदाद थे, वो भी बुतों की पूजा करते हैं। कहते तुम आज यहां पे फैसला करो। अब शिकम का मकाम जो है वो बड़ा अहम है और उसने शिकम के मकाम पर ही क्यों बनी इस्राएल के तमाम बुजुर्गों को बुलाया? कुछ और भी हो सकता था, लेकिन वो एक अहम पॉइंट है जहां पे यशुआ जो है बुलाता है ताकि इस्राएल के बुजुर्गों को अच्छे तरीके से समझ लग सके कि आज उन्होंने कौन सा फैसला करना है और कैसे फैसला करना है। क्या है शिकम? ये शिकम वही जगह है जहां पर खुदा यहोवा जो है वो हजरत इब्राहिम को बुलाता है और वहां पर उससे वादा करता है कि जिस जमीन पर तू खड़ा है ये मैं तेरी नस्लों को दूंगा, तेरी औलाद को दूंगा। और 700 बरस गुजर जाते हैं जब ये जमीन फिर उनके पास होती है। शिकम वही मकाम है जब हजरत यकूब अपने सुसर लाबन की जो है वो खिदमत करने के बाद और वहां से ब्याह करने के बाद वापस आ रहे होते हैं तो शिकम की जगह पर वो रुकते हैं और वहां पर जमीन खरीद कर वहां पर खुदा का जो है वो अलतार बनाते हैं और अपनी जो बेगमात है राहिल और दूसरों को हुक्म देते हैं कि ये जितने बुत तुम अपने बाप के घर से लेकर आए हो, जिनके तुम पहले इबादत और प्रस्तुत करते थे, यहां पर उनको क्या कर दो, दफन कर दो। शिकम के मुकाम पर उसने तमाम बुतों को वहां पर दफन करवाया था। और फिर शिकम वही मुकाम है जहां पर हजरत यूसुफ जो है उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जो बाकियात होती हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं, उसको वहीं पर लाकर जो है वो दफन किया गया था। तो शिकम को ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां पर उनको बुलाया गया है, ये एक अहम मकाम है, मुकद्दस मकाम है जहां पर बुलाता है और वहां पर कहता है कि हाँ आज बताओ तुम किसकी इबादत करोगे, क्या उन बुतों की जिनको तुम्हारे बाजरात करते रहे और उनको यहां पर दफन कर दिया गया, या इनकी जिनके घरों में तुम आकर जिनकी जगह पर आकर तो बैठे अमूरी और उनके खुदाओं की, या किसकी, यहोवा की, जिंदा और सच्चे खुदा की। और
यशुआ जो है अपना फैसला पहले ही सुना देता है, कहता है आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं और मेरा खानदान किसकी प्रस्तुत करेंगे? खुदावंद खुदा की, यहोवा की, सच्चे खुदा की। और बाकी सारे इस्राएल के बुजुर्ग भी फिर एक सच्चा इस लम्हे पे फैसला करते हैं। उनको पता है कि यहां पर क्या कुछ है, वो भी फैसला करते हैं कि हम भी किसकी प्रतिष्ठा करेंगे? खुदा की। और लिखा है क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि वही हमारा खुदा है, क्योंकि वही हमारा, ऊंची आवाज में, क्योंकि वही हमारा खुदा है, हम उसी की प्रतिष्ठा करेंगे। एक अच्छा और सच्चा और दुरुस्त फैसला जो है वो किया गया है खुदा के फजल से। तो आज हमें भी बुलाया जाता है कि हमने कैसा फैसला करना है अपनी जिंदगी में, और उसकी दावत जो है वो हमें आज की अंजील मुकद्दस में दी जाती है। आज की अंजील मुकद्दस सी खुदा मेरे अजीजों, कुछ इतवार पहले मैं यहीं पे खड़ा था जब हमने यूहन्ना के इंजील के बाब से, छठे बाब से पहली तिलावत सुनी थी। तो उस दिन मैंने आपको क्या कहा था कि आइंदा आने वाले 5 इतवारों तक हम क्या करेंगे? यूहन्ना की इंजील के छठे बाब से तिलावत सुनेंगे। यूहन्ना की इंजील के छठे बाब से तिलावत सुनेंगे। ये वही बाब है जिसमें जिंदगी की रोटी का जो है वो बयान किया गया। खुदावंद यीशु मसीह की लंबी जो है वो बातें हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। आज 5वां इतवार है और आज इस चैप्टर का, यूहन्ना की अंजील के छठे बाब के जो तिलावतें हैं उनका इख्तिताम होता है। लेकिन इख्तिताम एक पीठ पर हो रहा है। सारी तालीमात हमें दी गई हैं, लेकिन आज हमें एक फैसला करने के लिए खुदा जो है वो बुलाते हैं। अब लिखा है कि बहुत सारे जो है वो कुड़कुड़ाने लगे खुदावंद यीशु मसीह पर। जितनी बातें खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं, यार इसकी तालीम क्या है, बहुत सख्त है। इसकी तालीम क्या है, बहुत सख्त है। और ये कोई और नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? खुदावंद खुदा के शागिर्द। कोई दुश्मन नहीं उसके कह रहे, वो भी इधर है, उनका भी जिक्र देखेंगे। लेकिन ये कौन कह रहा, कुड़कुड़ा कौन रहे हैं? खुदावंद खुदा के शागिर्द। वो इसकी तालीम बहुत सख्त है। और लिखा है कि बहुत सारे उसको छोड़कर चले गए। फैसला किया। देखिए खुदा ने सबको आजाद मर्जी दी है, जो हमने पहले भी देखा। आप अपनी आजाद मर्जी तो बहुत सारे फैसले जो हम करते हैं। अब देखा ये भी फैसला करके, मैं इसलिए कहानी आपको शुरू में बताई थी कि हमें जरा थोड़ा सा एहसास हो कि हमने किन चीजों पे गौर। फैसला, खुदावंद खुदा को छोड़कर चले गए। और गए कौन है? उसके शागिर्द। उसके शागिर्द। क्योंकि खुदावंद खुदा जो बोलता है उनको लगता है कि बहुत क्या है, सख्त है। ये कौन कर सकता है, कौन मान सकता है इन बातों को? उनके कानों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। प्रॉब्लम भी हमारी आज के दौर में यही है सबसे बड़ी, क्या कि हम सच सुनना ही नहीं चाहते। हमारे कान इस तरफ जो उनकी ट्यूनिंग ही नहीं हुई। हाँ, उनके से सच रिश्तेदार जो सच बोल के देखो जरा, लग तो पता जाएगा। लड़ाइयां ते लड़ाइयां, ये हुंदा कौन है, हुंदी कौन है सानू गल करने वाले? भावें सच्ची गल तो कीती है कि बच्चों की कोई तरबियत करो, बच्चे इंज करते हैं, ना भाई तुसी कौन होंदे सानू गल? सच बोलने के लिए हमारे कान जो है वो ट्यून ही नहीं हुए। सुकरात का कभी नाम सुना? बहुत बड़ा फिलोसोफर खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन आने से पहले 400 साल, 450 साल पहले सुकरात बहुत बड़ा फिलोसोफर, सच बोलता था, अपने मुआशरे में सच्चाई की तालीम देता था। और उसको उन्होंने जहर का प्याला दे दिया। उस अपनी बातों से, सच्चाई से नहीं वो मुड़ा, लेकिन उसने जहर का प्याला जो है वो पी लिया। सुकरात ने, सुना कभी उसका नाम? हाँ, सुकरात 450 साल पहले खुदावंद यीशु जहर का प्याला, लेकिन सच से नहीं मुड़ा। उसका एक शागिर्द था अरिस्तोपिस। उसका एक शागिर्द था, मैं नहीं आता कि हम नाम याद रखें, लेकिन बात याद रखना। अरिस्तोपिस उसका एक शागिर्द था। लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार इसका उस्ताद सच बोलने वाला, सच्चाई के लिए खड़ा होने वाला और अपने फैसले पे कायम रहने वाला, अपनी जान दे दी लेकिन सच के लिए वो खड़ा रहा। देख लें, वो कहते हैं कि अगर उस दिन
सुकरात जो है वो जहर का प्याला ना पीता तो हकीकत में मर जाता। जिस्मानी तौर पे वो मर गया, लेकिन देखें सच्चाई के लिए आज भी वो जिंदा। इतने 100 सालों के बाद भी उसका नाम लिया जाता है कि बंदा सच्चाई के लिए खड़ा रहा, उस अपने फैसले के लिए खड़ा रहा। उसका शागिर्द अरिस्तोपस जालिम हुक्मरान था डियोनीसियस, उसके कदमों में गिर पड़ा और लोगों ने बड़ा नुक्ता उस पर तनकीद की कि यार इसका उस्ताद, और ये देखो जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा नहीं हो पाया और उसके कदमों में गिर पड़ा। अब अरिस्तोपस जब ये बात सुनता है, गौर से सुनिएगा ये बात हमारे काम के लिए। अरिस्तोपस जब ये बात सुनता है वो लोगों को पता क्या कहता है? वो कहता है भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जब बादशाह डियोनीसियस के कान ही उसके कदमों में हैं, जब बादशाह के कान ही उसके कदमों में, पैरों के नीचे उसके कान है, इसलिए मुझे अपना सर झुकाना पड़ा उससे बात करने के लिए। ओहो सी खुदा मेरे अजीजों, हम में से बहुत सारे, मतलब क्या है इसका कि हम जैसा अरिस्तोपस ने जान लिया था कि ये जो दुनिया है, ये जो लोग है, ये सच्चे अल्फाज की कदर नहीं करते, ना सच्चे अल्फाज इनको पसंद है। इनको सिर्फ वही अल्फाज पसंद हैं जो कानों को मुतमिन करें, जो मैं यहां पे तसल्ली दें, जो मैं खुशी दें। और इस बात को आपके सोशल मीडिया ने, आज के दौर ने, फेसबुक ने, टिकटॉक ने और भी जितने कम्युनिकेशन के, उन्होंने अच्छी तरह जान लिया है। आपके पॉलिटिशियन, आपकी जो सियासत है, उन्होंने भी अच्छे तरीके से जान लिया, उन्होंने भी सीख लिया है कि भाई लोगों को सच नहीं, लोगों को वो सुनाओ जो उनको क्या करता है, खुशी देता है, खुशी देता। और हमें इस बात की अब आदत हो गई है, हमें वही सुनना है जो हमें खुशी देता है, जो हमें तसल्ली देता है वक्ती तौर पे। आप देख लें हमारे सियासतदान कितनी कितनी बातें, ओ ताड़ियां दे ताड़ियां, की खुशियां दे खुशियां, हम गरीबों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। सुनते हैं कि नहीं सुनते आप तकरीरें? ये खुशी होती है, हाँ वाह वाह, साड़ियाँ बाजार बन जाएंगे, साढ़े गैस लग जाएगी, साढ़े बिजली आ जाएगी, हमारे बिल कम हो जाएंगे, हमारी महंगाई कम हो जाएगी। ये सुनने हैं कि नहीं सुनते? वो ऐसे हम महंगाई को ऐसे कम करेंगे, हम ऐसे कम करेंगे, हम ऐसे कम, असी खुश, हाँ वोट देना ही देना भाई, वाह जी वाह बात। अब वो बात सच है झूठ है उसका तो बाद में अभी पता चला कि हम खुश थे कि हाँ भी महंगाई कम हो जाएगी, हुई कम महंगाई, हाँ बस। लेकिन साढ़े कान दी तो खुश होए कि नहीं होए सुन के? हो ना, हमें खुशी है और हम जानते भी हैं कि ये जो बात कर रहे हैं सच्ची बात नहीं कर रहे, लेकिन उनको पता है कि लोगों ने खुश है ना गल्ला नाल ही होना है, सच्ची बात नहीं हम सुनते। आप अपने घरों में देख लें, सच्ची और कड़वी बात जो है हमें वैसे ही बुरी लगती है, उस शख्स के पास हम बैठना नहीं चाहते। अपने घरों में देख लें, बाप अगर बेटे पर या बेटी पर सख्ती करता है, उसकी तरबियत करता है, कुछ बात कहता है, वो भाई घरां दे विच बेटा बेटी मुंह बनाई रखते ने प्यो नाल, क्यों? क्योंकि वो तरबियत की बात कर रहा है, तंबीह कर रहा है, सच्ची बात कर रहा है कि पुत्र सारा दिन तू सुता रहना है, घर प्यार है ना, उठ को काम कर, जिंदगी इंज नहीं गुजरती। पुत्र नूं प्यो बुरा लगता है। हाँ, दूसरा ये नहीं कि मैं माओ को बुरा नहीं कहने लगा या मैं बुरी, माओ का प्यार होता है एक्चुअली, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना, माँ जड़ी वो उठाएगी, चल पुत्र उठ के खाना खा ले, पुत्र सुता पिया रात का सारी रात सुता तो उठ के खाना खा ले, थक गया होगा सौ सौ के, उठ भाई भाई। अब पुत्र को कौन चंगा लगना? पुत्र नो है कौन चंगा लगेगा? माँ चंगी लगेगी, क्यों? वो तसल्ली मिल रही ना कन्ना कि यार कोई गल नहीं, सुता भी सब कोई गल नहीं। हमें आदत हो गई है सिर्फ इत्मीनान और तसल्ली के लफ्ज सुनने की, वो भी ऐसे ही सच बोल के बताएं किसी को, आपको लग पता जाएगा, आप तो सालों साल तो मुंह नहीं सीधा करेंगे। आदत हो गई हमें, इसी आदत से हमें बाहर निकलना है। यही आज हमने फैसला करना है, खुदा बुलाता है कि हमने सच्चे लफ्जों की तरफ जाना है या तसल्ली और इत्मीनान जो लफ्ज देते हैं उनकी तरफ जाना है। देखिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें सच्चाई की तरफ लेके जाते हैं। अब आपने फिक्र नहीं करनी, अपने खुदा से ही सीखना है। अगर छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाओ, लेकिन सच्चाई यही है। खुदा ने कहा कि जो मेरा बदन नहीं खाता, मेरा खून
हकीकत में बयान कर रहा हूं। शागिर्दों ने सोचा कि शायद खुदावंद यीशु मसीह इशारों कनायों में बात कर रहे, शायद उन्होंने कहा हो कि भाई खुदा अपनी बात को ठीक करके मैं एक किस्म का निशान दे रहा हूं, एक सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो खुदा ने ये नहीं कहा कि ये सिंबल है, नहीं भी सच्चाई यही है, और बहुत सारे छोड़ के चले गए। अब खुदा ने ये नहीं कहा। अभी देख के हमें होता है कि रिश्ते खराब ना हो जाए, इसलिए झूठ तो बोलने ही बहुत ज्यादा मना, सिर्फ रिश्तों को रखने के लिए। और चल खैर है यार, नहीं भाई सच पे कायम करें उनको, झूठ पे करेंगे तो वो वैसे ही खराब हो जाने हैं। सच पे करें, कड़वा जितना मर्जी हो। देखो बीमारी तो शिफा पाने वास्ते दवाई कड़वी खानी पैंदी है, पैंदी कि नहीं पैंदी? अगर तो शिफा पानी है। हुण जे कहांगा कि दवाई कौड़ी में खानी नहीं गी तो शिफा पाओगे तुसी ना भाई, वो तकलीफ से गुजरना ही पैना है। जो कड़वी बात है उसको कबूल करना पड़ना है। अब देख ले खुदा ये नहीं कि भी चले गए, ओ कम खराब हो गया, सारे शागिर्द छड़ के चले गए बहुत सारे। अब रह कितने गए हैं? 12। अब खुदा ने उनको ये नहीं कहा कि ओ मैं ये बात मेरा मतलब ये था, नहीं भाई हकीकी यही मतलब था कि जो मेरा गोश्त खाएगा, मेरा खून पिएगा, उसी में जिंदगी है, और ये हकीकी बात यही है। शागिर्दों कहता है यही हकीकत है। शागिर्दों को कहता है कि हाँ तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? बात यही है, हकीकत यही है। मेरे गोश्त और खून के बगैर हकीकी जिंदगी, अपनी जिंदगी नहीं है। क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? इतने चले गए उनको बात। फैसले की घड़ी है, फैसले की घड़ी है, और फैसला हमने करना है हक और सच पे, फैसला करना है दुरुस्त। और जैसे सब शागिर्दों को पहले भी पतरस करते हैं, हमने दूसरे अंजल में, आज फिर पतरस वही कहते हैं। जब खुदा क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो, तो क्या कहता है पतरस? फिर बात करता है, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें, हमेशा की जिंदगी सिर्फ तेरे ही पास है। ये हमने फैसला करना है सच पे, हकीकत पे। अगर हम आज हकीकी तौर पर सही फैसला नहीं करते तो क्या है कि हम हमेशा की जिंदगी से दूर हो जाएंगे। अब मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, हम सब एक दिन पहले ही मैंने बात की थी जिंदगी और मौत पे। हम सब जिंदगी चाहते हैं कि नहीं चाहते? बताएं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं, हम सब जिंदगी चाहते हैं। किन्ने दिन की जिंदगी चाहिए है? 10 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, 40 साल की, 50 साल, 60 साल, कितने दिनों की जिंदगी चाहते हैं बताएं? हमें कल के लिए नहीं, परसों के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, 40 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए? हमेशा की जिंदगी चाहिए। और हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। इसलिए आज मैंने फैसला खुदावंद यीशु मसीह के लिए करना है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें हैं आज की इंजील मुकद्दस में, चंद एक बात है और उसके बाद आज के कलाम का फिर इख्तिताम करते हैं। लेकिन वो अहम बात है जो मैं करना चाहता हूं। हमने पिछले त्योहारों में फादर जी ने बहुत अच्छे तरीके से वाज़े तौर पर यीशु ख्रिस्त के बारे में, क्योंकि ये सारे का सारा जो चैप्टर है, बाब है यूहन्ना का 6ठा बाब जो है, ये पाक यीशु ख्रिस्त के बारे में खुदा के हुजूर फादर जी ने मुख्तलिफ पहलू जो हैं पाक यीशु ख्रिस्त के, वो हमें समझाए, बताए, हमने सुने और बड़े अच्छे तरीके से हमने उनको फॉलो किया। जिनमें एक यह है कि पाक यीशु ख्रिस्त जो है वो हकीकी तौर पर, यहां पर हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी होती है, मौजूदगी होती है। अब फैसले की बात है कि आज मैंने फैसला करना है कि क्या मैं इधर रहना चाहता हूं इस यीशु ख्रिस्त के लिए, इस पाकमास के लिए, या मैं छोड़ रहा हूं। पार्ट टाइम कैथोलिक्स नहीं हो सकते कि आज इतने थोड़ी जी मान ली
ਅੱਜ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਕਮਾ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ तनकीद शुरू कर दी थी। ना ना ना, हम पार्ट टाइम कैथलिक्स नहीं हो सकते। कैथलिक अगर होना है तो फुल टाइम कैथलिक, सारे का सारा कैथलिक। फैसला आज, यस और नो, तुम्हारी हाँ हाँ और तुम्हारी ना ना होनी चाहिए। नीम गर्म नहीं होना, नीम गर्म वैसे भी खुदा ने कहा नीम गर्म है, वैसे ही तुम्हें मुंह से क्या करूंगा, निकाल फेंकूंगा, या गर्म या सर्द, नीम गर्म नहीं। तो फैसला आज। लेकिन क्या हम इन शागिर्दों की तरह वापस जाना चाहते हैं? वापस जाना चाहते। बहुत दफा ऐसे होता है कि हम बहुत लंबा अरसा खुदा के साथ चलते हैं। ये भी लोग खुदा के साथ चलते रहे हैं, 30 साल 40 साल, कितना अरसा हो गया हमें खुदा के घर में आते हुए। ये भी लोग खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन एंड पे जब सच्चाई की और फैसले की बात आती है, हमारी जिंदगी, मैंने शुरू में कहा था, फैसलों पर मुनहसर करती है। गलत फैसला किया तो गए, अच्छा फैसला किया तो हमेशा की जिंदगी। अब इतना अरसा मैं खुदा के साथ चलता रहा हूं। ये देखिए हम सब यहां पर हैं, 10-12 साल मुझे फादर बने हुए हो गए, बाकी सारी जिंदगी फादर जी को इतना अरसा 25 साल से ज्यादा फादर बने हुए हो गए। आप लोग यहाँ पर, हमारे भाई रियासत इतनी देर से खिदमत करते हैं, क्वायर कितने कितने अरसे, कितने कितने साल हमें खुदा के साथ हो गए हैं। लेकिन क्या मैंने फैसला किया है उसके साथ हकीकत में रहने का? क्या कहीं ऐसा तो नहीं इतना होने के बाद जब कोई लम्हा आए कि मुझे फैसला करना पड़े सच्चाई पर, और मैं भी इन शागिर्दों की तरह छोड़ के तो अपना रास्ता नापूं? इस भी हमने सोचना है, इस भी हमने देखना है। देखिए आज की जो अंजील मुकद्दस खत्म हुई है, बड़े अहम बातों पे खत्म हुई है। खुदा अपना सारा कुछ जो है वो देना चाहते हैं। खुदा ने जब कहा जिंदा करने वाली तो रूह है, जस्सत से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा, कौन उसे पकड़वाएगा। यह खुदा शुरू से जानता था। देखो, जानते हुए भी, इस वक्त भी, हमारे कमजोरियों को जानते हुए खुदा में अपना सारा कुछ देना चाहता है। वो जानता था कि कौन उसे पकड़वाएगा, फैसला करना है। अब देखें क्या फैसला हुआ। कुछ ने फैसला किया, जैसे कि यहूदी थे, उन्होंने कहा नहीं ये कुफर बकता है, हम इसके साथ नहीं चल सकते। दूसरा ग्रुप जो उसके शागिर्दों का था, उन्होंने कहा कि हम छोड़ जाएंगे, अपने अपने कामों को चले गए। फिर रसूल आते हैं, 12 रसूल आते हैं। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने फैसला किया कि ऐ खुदावंद हम तेरे ही पास रहेंगे, जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। अब एक शख्स ऐसा है वो जो इन 3 ग्रुपों च नहीं आता है। वो शख्स कौन है? एक शख्स आज की इंजील मुकद्दस में, और वो है यहूदा अस्करियोती। वो इनमें किसी में भी नहीं आता, वो खुदा के 12 शागिर्दों में है। देखिए लिखा है कि उसे पता था जो ईमान नहीं लाता और उसे कौन पकड़वाएगा। अब देखिए ना, वो सिर्फ हकीकी तौर पर मैं फादर यहाँ पे लेक्चर, आप सारे यहाँ पे बैठे हुए, हम खुदा के क्या हैं? साथ है। जाहिरी तौर पर साथ भाई तो लेक्चर करन डे हम पाकवास कर रहे हैं हम आपके लिए, आप सारे इधर बैठे हुए हैं। जाहिरी तौर पर वो खुदा के साथ है, लेकिन दिल में वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर रहा। मेरा अपने आप से सवाल, हम सबका अपने आप, क्या मैं कहीं इस कैटेगरी में तो नहीं आता? इतने साल खिदमत करने के बावजूद भी, इतने साल उसके साथ रहने के बजाय मैंने दिल में फैसला क्या किया हुआ है? खुदा के लिए किया है या अपने आप के लिए किया हुआ है? वो ना सिर्फ पाक यूक्रिस्ट को नहीं मानता, बल्कि उसकी तहकीर भी करता है, हकीर जानता है खुदा के अल्फाज को। हो। लेकिन देखिए फिर खुदा कहते क्या है उसके बारे में? क्या कहते हैं? कोई बहाम रहने नहीं देते यहूदा अस्करियोती के बारे में। आज की जो अंजील मुकद्दस आखिरी आयत है वो सुन ले क्या खुदा कहते हैं उसके बारे में।
کوئی بہام نہیں کہ سارا وقت اس کے ساتھ، ہر جگہ اس کے ساتھ، لیکن دل دماغ کہیں اور پلاننگوں میں لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا میں اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی خدا کے خلاف تو نہیں، اور خدا دیکھ کے کیا کہتے ہیں، مقدس یوحنا کوئی بہام نہیں چھوڑتے اس بات کے بارے میں۔ کیا کہتے ہیں خدا کیا کہتے ہیں؟ جو آپ سوال کرتا ہے جب پترس کہتا ہے کہ ہم تیرے ہی پاس رہیں گے زندگی بات ہے، کہتا ہے کیا میں نے تم 12 کو نہیں چنا؟ خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں نے تم 12 کو نہیں چنا اور تم میں سے ایک شیطان ہے، اور تم میں سے ایک شیطان ہے۔ پہلے ہم دیکھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کچھ ایمان نہیں لاتے، نہیں لائے، نہیں مانتے دل میں اس کی باتیں، ساتھ ہیں اس کے، ساتھ چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں لے کے۔ اور خدا کیا کہتا ہے کہ تم میں سے ایک کیا ہے؟ شیطان ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ جو ہے وہ کلام کو ماننے والا نہیں، مجھے ماننے والا نہیں، بلکہ میرے خلاف کیا ہے، غلط فیصلہ کیا۔ اور مزید سن لیں، خدا سیدھی بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور یوحنا رسول کیا لکھتے ہیں؟ اور اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی بابت کہا تھا، یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ شیطان ہے۔ دیکھ لیں اس کا فیصلہ کیا تھا، اور بعد میں آپ سب کو پتا ہے کہ غلط فیصلے کی وجہ سے وہ کہاں پر پہنچا، پھانسی لی، خدا سے دور۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ خدا مجھے سارا کچھ دینا چاہتا ہے، سب کچھ دینا چاہتا ہے، وہ زندگی ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، زندگی ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ فلسطین میں جو بالا خانہ ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح نے آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا تھا، تو اس بالا خانہ میں ایک درخت کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اس بالا خانہ میں جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے آخری کھانا کھایا تھا، اس درخت کا مطلب کیا؟ سن لیں مسیح خدا میرے عزیزو، یہ آخری بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، سن لیں غور سے، ذرا دھیان سے۔ بالا خانہ، آخری کھانا جس میں خدا یسوع مسیح پاک یوخرست کو مقرر کرتے ہیں، اپنا پاک بدن اور خون ہمیں دیتے ہیں، وہاں پر درخت کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ خدا یسوع نے آج ہمیں کلام میں فرمایا اور پچھلے اتوار میں بلایا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے۔ اب آپ یاد کریں باغ عدن میں خدا اما اور بابا آدم کو منع کرتا کہ ایک درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا، انہوں نے پھل کھا لیا اور باغ سے نکالا گیا۔ تکوین کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 24ویں آیت جا کے پڑھنی آپ نے، اور پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا اور شجر حیات پر فرشتے کو تلوار دے کر اس کا پہرا لگا دیا۔ کس پر؟ شجر حیات، زندگی کے درخت پر پہرا لگا دیا کہ کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ لیکن آج یوخرس میں خدا یسوع مسیح نے اس پہرے کو ہٹا دیا اور ہم سب کو بلاتے کہ شجر حیات، زندگی، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ میرے پاس آئے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ وہ پہرا ہٹ گیا، آج ہم سب کو دعوت ہے، اور آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے بھی جانا ہے۔ خدا یسوع مسیح آج ہم سب سے پوچھتا ہے کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ لیکن ہمارا جواب مقدس پطرس کی طرح پورے ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔